get started with the warm up. Warm up हम next से शुरू करेंगे, so उसके लिए you can just do the neck warm up first. और उसके लिए अपने chin को नीचे और ऊपर लेकर जाइए and release the tension in your neck very slowly. 3 to 4 or even 5 rounds is fine. And then left to right. So अपने ear को shoulder के साथ touch करने की कोशिश कीजिए. Ear to shoulders. इसमें कंधे को ऊपर नहीं लाना है, ear को नीचे लेकर जाइए. And feel that your neck muscles are getting warmed up. At the same time, tension release हो रहा है. Now the shoulder warm up. So backward motion में full motion दीजिए. Backward motion, full motion. You can do this 7 times. And then forward 1, 2, 3, 4, 5. 2 more. And relax. Let's do the wrist warm up. Wrist का हम काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, so feel your wrist warming up and do the reverse. Keep a smile on your face while doing exercise. Awesome. And then do the hip rotation, hip circle, full motion. So just be in comfort. जितना आप कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे धीरे कीजिए. And opposite, anti-clock. आपके abs भी engage हो रहे हैं इसमें. Your core is getting engaged. And relax. Now what you can do is you can just stretch your hamstring and then quadricep at the same time. आप चाहे तो साइड में सोफा का या तो चेयर का सपोर्ट लीजिए एंड डायनेमिकली इसे स्ट्रेच कीजिए. हम पूरा दिन क्योंकि बैठे रहते हैं तो ये मसल्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं क्वाड्रिसेप एंड हैमस्ट्रिंग. सो 3 बार आप कर सकते हैं बोथ द लेग्स. Keep a support. अगर out of balance हो रहे हैं, keep a support. Feel the stretch in your hamstring and now in the quadricep, your thighs. Last time. And the last warm up, which is ankle. So simply circle में घुमाना है उसे. Very easy. And then anti-clock. उसे बता दीजिए कि हम ready है वर्कआउट करने के लिए. Other leg. Beautiful. धीरे 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 आपका बॉडी मानो खुल रहा हो. Opening up for the exercise. ऐसा फील कीजिए. Awesome. Let's start with our first exercise. Warm up is over and the first exercise is simple jumping jacks. So what you're going to do is 1, 2, 3. Let's do 30. All right. Keep going. Let's do 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 more guys. 3, 4, 5, 10 more. All right, awesome. Next exercise, which is inch warm. So what you're going to do is, आपके पास अगर मैट है उसके एज पर आ जाइए. गो डाउन, वॉक 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 वॉक. प्लैंक की पोजीशन में आ जाइए. कम बैक एंड स्टैंड. वन मोर. गो डाउन, कम बैक एंड स्टैंड. कीप गोइंग, कीप गोइंग. Keep going. 3. Let's do 10. 4. 6 more. ऊपर आए तब बिल्कुल सीधे हो जाइए. 5. Stand straight. Go down. 6. 4
4 more, guys. Come on, you can do this. Easy. Three more. Two more. And the last one. And come up. Next exercise, number 3 exercise, that is shuffle and touch the ground. So let's go. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 1, 2, 3, touch. 10 each side. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, and relax. Amazing, guys. How is it feeling? Let's do the next exercise, which is mountain climbers. Take a deep breath. Take a deep breath. Let's do mountain climbers. Plank position में आ जाइए and go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 more. 19, 20, and you can relax. Beautiful. Already you have done 4 exercises. Next one is slow burpees. Slow burpees, you can just do 15, if not just do 10. All right? So, mat के आगे आ जाइए. Up, down, दोनों legs पीछे, दोनों legs आगे, and up. Come on, let's do 10 at least. This is slow, this is not fast, so you're not jumping. If you want, you can jump. So you can jump back, you can jump forward and up. 5, 6, 7, 8, 9, and last one. Awesome, wonderful. Next one, and that is reach and crunch. So one side, अपने feet को almost 45 से थोड़ा सा tilt कर सकते हैं. 45 भी चलेगा. And then you can turn to your side a little bit and reach and crunch, crunch, crunch. Try 15 each side. 5, 6, 7, 9, 10, 5 more. 2, 3, 4, 5. Other side. 1, 2, 3, 4. Come on. Reach and crunch. 5 more. Reach and crunch. Last one. Amazing, guys. Beautiful. Next one, and that is plank ही करेंगे, but then you have to come up and down in plank. So in this position, 1, 2, just do 10, 3, 4, 5 more. You can do this. Come on. Last one. And you can relax. Whew. Let me know in the comment, how are you feeling at this moment? Beautiful. Next one, and that is alternate knee and elbow touch. So come to the plank position and then put your heels down. All fours में आ जाइए.
alternate hand and leg raise and then crunch. 1, find your balance. 2, 3, 4, 5. Let's do 10. And last one. Beautiful. Other side. Come on, you can do this. Other side. 2, 3, 5. Last one. And relax. Good. Very nice. The next one, 8th exercise that we have done. The 9th one, last 2 left. That is Superman. Superman. So, उल्टे लेट जाइए आपके मैट के ऊपर. For the back, we are going to do this exercise. So what you have to do is, दोनों हाथ को आगे रखते हुए हाथ को भी ऊपर लेकर आना है और पैर को भी ऊपर लेकर आना है, like this. 1, down. 2 and down. Do 10. Feel your back muscles working. Hold for a second and down, then down. Come on. Last one. And relax. Okay, now comes the last one, and that is you're going to lie down on your mat like this, on your elbow. Okay, और नीचे के leg को bend कर दीजिए 90 degree angle and in this. So exactly आपके एक knee के नीचे दूसरा knee होगा and 90 degree angle आपको bend करना है. Keep your hands here or here, जो भी आपको comfortable लगे, and leg raise. 2, 3, 4, 10 each side. दोनों leg पर करना है at least 10. And relax. Other side. Rest on your elbow. Bend your knees and go 1, 2, 3, 4, 5. This is very easy. 6, 7. Feel your outer thigh. You can do more of these, no problem. And relax. Let's take a break of 1 minute. If you feel like you can just drink some water, 1 या 2 sip लीजिए, ज़्यादा नहीं. Just take a break of 1 minute. Only 1 minute. Cool down. Awesome. So just sit and then हाथ को पीछे लेकर जाइए. Look up. अपने बैक को bend कीजिए. Chest stretch. And then hug yourself round your back. One more time. Hug yourself other side. 2 more. Hug yourself. And hug yourself. And relax. Let's do some shoulder stretch. Hold for 10 seconds. Other side, hold for 10 seconds. Keep breathing deep. Feel the blood flow, the energy moving in your body from your head to the toes. Relax. Tricep stretch. इसे stretch कीजिए. Close your eyes. Feel the stretch. Other side. Breathe out from your mouth if you need. तो ज़्यादा relaxation का feeling होगा आपको. And then relax. Now अपने leg को butterfly pose में लेकर आइए. And just feel the stretch. Amazing stretch. Beautiful. Keep breathing deep.
Keep breathing deep. Let's come to Baddha Konasana, the last pose, and that is ऐसे ही रखते हुए you can slowly go down, down. And slowly, whenever you are ready, you can come back and you can stand up slowly, very slowly. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. हाँ जी, तो हम बात कर सकते हैं आगे लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी आपका कल का एक्सपीरियंस है या कुछ दिनों पहले का कोई भी एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस या लाइफ में कुछ लगा कि ये बिल्कुल जादुई घटना हुई मेरे साथ, तो डेफिनेटली हम शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो सबके लिए एक लर्निंग होती है, मोटिवेटिंग होता है। वेलकम टू ऑल। कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, कोई भी शेयर नहीं करना चाह रहा एक्सपीरियंस? किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा? हमने कल 2 ट्रेनिंग अटेंड की थी। एक तो 4 बजे मेनोपॉज के ऊपर एक ट्रेनिंग की एक सेशन था और एक 5 बजे नींव था। तो इससे रिलेटेड कोई भी बात शेयर करना चाह रहे हैं? मेनोपॉज वाली ट्रेनिंग जो है मैंने अटेंड की थी। थैंक माय सेल्फ सुप्रिया। तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, चेतना जी की थी। इतना बढ़िया बताती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे जो कि और काफी अच्छा जेन्युइन रीजन दिया था कि वो जरूरत पड़ सकती है, जैसे बायोटीन, डेली प्रोटीन, और उन्होंने ओमेगा बताया था, बी नेचुरल बताया था, और उसके अलावा जो है उन्होंने मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए थे तो कि विटामिन सी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम बताया था। तो बहुत जेन्युइन रीज़न था और मतलब बहुत ही बढ़िया था। कुछ-कुछ ऐसी बारीकियाँ बताई थी जो हमें पता ही नहीं होती है कि हम कोई भी कस्टमर यदि अपना प्रॉब्लम लेके आता है तो हमें पता नहीं होता है। तो ये ट्रेनिंग्स अटेंड करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके सामने अपने उसको उसकी प्रॉब्लम से रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो हम उसको सही प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाते हैं। तो ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ही बढ़िया रहता है। थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया भाभी, बहुत अच्छे से शेयर किया आपने। और डेफिनेटली उस टाइम पे जो 45 40 प्लस हम बोल सकते हैं, वो जो टाइम पीरियड होता है फीमेल्स के लिए काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं, तो वहां पे सप्लीमेंट की नीड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है और वो वाले टाइम पीरियड को पार करना जो है वो सप्लीमेंट्स के साथ बहुत इजी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। हम बिल्कुल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रहा है? मैं अपना एक एक्सपीरियंस गुड शेयर मॉर्निंग कर। एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेलकम प्रियंका जी। हाँ जी, नमस्ते सबको। जो भी सेशंस होते हैं या वो मैं सब देखती हूँ, इवन कभी तो बेटी को भी दिखाती हूँ कि उसको भी इससे इससे अपने आप ही नॉलेज मिल जाए कि मुझे कुछ बताना ही ना पड़े उसको आगे इन फ्यूचर। तो वो भी काफी कुछ सीख रही है। इवन आज सुबह तो उसने मॉर्निंग सेशन भी अटेंड किया है जो एक्सरसाइज का। तो मैंने कहा यूं तो क्योंकि अभी घर में ही है, अभी 1-2 साल से बच्चे कोरोना की वजह से अभी स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा यूं तो कुछ कर नहीं रहे हो, पढ़ाई बस बैठे रहते हो, तो अब इसी बहाने ये 15 मिनट ये एक्सरसाइज करो तो थोड़ा स्टार्टिंग अच्छी हो दिन की। तो ग्रेट उसने आज ग्रेट, अटेंड किया। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप प्रियंका जी। जैसे हम बुक में पढ़ रहे हैं ना अपना ब्लूप्रिंट,
तो बच्चों को साथ में हम अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उनका ब्लूप्रिंट डेफिनेटली हम जो है वो अपने आप ही एकदम करेक्ट और एकदम सही ब्लूप्रिंट जो है वो बना पा रहे हैं उनका। जो हमें अपना थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है ब्लूप्रिंट में, वो उनको नहीं पड़ेगी। नहीं, तो हस्बैंड ने भी की एक्सरसाइज आज। चलिए, ग्रेट ग्रेट। ठीक। हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं प्रियंका जी? बस अभी तो स्टार्टिंग ही है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है अभी। बिल्कुल ठीक है, थैंक थैंक यू यू। सो मच। करना और चाहूंगी, कल जो ऑफर आया प्रोटीन का बहुत जोरदार था। और जैसे ही अपन होता है ना, लोगों को भेजते हैं तो क्वेरी बहुत आती है। तो वही है कि हमने भेजा है, क्वेरीज आई हैं और ऑर्डर्स भी आएंगे पक्के से। थैंक यू। आई थिंक हाँ जी, राजस्थान में तो खत्म हो गया ना ये। पता नहीं मुझे, वैसे बहुत लिमिटेड स्टॉक में था ये ऑफर प्रोटीन पाउडर वाला। तो अभी तक अगर किसी ने नहीं अवेल किया है तो डेफिनेटली कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा शानदार ऑफर है। हाँ, और डेफिनेटली बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर अभी भी कहीं पे नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑफर था जो कल लॉन्च हुआ था, ऑफर प्रोटीन पाउडर और जूसेस वाला। और ग्लूकोज अमीन के लिए भी बिल्कुल सेम बात ही है कि वो भी लिमिटेड स्टॉक में है, तो वो भी अपने को जल्दी ही अवेल करना पड़ेगा। तो हम एक और एक्सपीरियंस ले सकते हैं कल का और फिर हम आगे चलेंगे। कोई भी शेयर करना चाह रहा है तो मोस्ट वेलकम। किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं। कल बहुत शानदार हमारी एक पॉडकास्ट रिलीज हुई है सुमित जी की, माइंड योर माइंड। तो उसके बारे में कौन बताना चाहेगा? सबने सुना होगा डेफिनेटली। मीन्स हमने नहीं सुना क्या? इतना सन्नाटा कैसे है भाई? गुड मॉर्निंग। नहीं सुना है मैंने बाकी। सुना। गुड मॉर्निंग निशा जी, वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैंने कल रात को ही सुनी थी पॉडकास्ट एंड रियली इट वाज अमेजिंग। जो उसका टॉपिक था माइंड योर माइंड, वो बहुत ही मतलब रियल में माइंड को अलर्ट करने वाला था। और उसमें जो सुमित जी ने बताया था कि हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका बेसिक उन्होंने लॉजिक दिया था। और जैसे आजकल की जो न्यू जनरेशन है जो ये बात करती है कि भाई हम लोग हमारे पास आजकल मोबाइल फोन्स हैं, या जो हम लोग जितना सोशल मीडिया पे रहते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो हम सक्सेस कैसे पा सकते हैं। आप लोगों के टाइम में, उन्होंने उनकी जनरेशन के हिसाब से बात की थी कि आप लोगों के टाइम में तो ये प्रॉब्लम थी नहीं, तो आप लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो हमारी जनरेशन के लिए डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग पले बड़े इसी एरिया में है। तो उसके अंदर उन्होंने सुमित जी ने बहुत अच्छे से उस चीज को समझाई, और उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो चैरियट से देके बताया कि हम लोग उन्हें हमारे गीता में जिस तरीके दिखाते हैं कि आप एक रथ है जिसके ऊपर जो सवारी में है वो अर्जुन जी है, और भगवान कृष्ण जो है उसको चला रहे हैं रथ को, और 5 घोड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली ये आपकी जो यात्रा है, इस यात्रा में आपकी बुद्धि जो है, ठीक है, बुद्धि आपकी वो कृष्ण भगवान का रोल प्ले करती है। बाकी जो आपका रथ है वो आपका शरीर है, आपका जो आपके जो 5 घोड़े आपको नजर आते हैं वो आपकी 5 इंद्रियां हैं, और जो अर्जुन है वो आपकी आत्मा है, आपकी सोल है, जिसको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो डिस्ट्रैक्शंस आपके अगर लाइफ में आते हैं तो आपकी जो 5 इंद्रियों से ही आपको डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तो आपको कंट्रोल उसको किससे करना है? अपनी बुद्धि से। बुद्धि से कंट्रोल आप कैसे करेंगे कि आपकी 5 इंद्रियां जब भी आपको डिस्ट्रैक्ट होती है तो आपकी बुद्धि को आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी जो सोल है उसका पर्पस क्या है लाइफ का। जब आपको ये पता होगा तो आप आराम से उन 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने इस तरीके बताया कि अगर घोड़ों को अगर हम छोड़ दें खुला कि भाई तुम्हें जहां जाना है चले जाओ, तो आप सोच के देखो वो आपको कहाँ लेके जाएंगे। एक दूसरी दिशा में भागेगा, एक अलग दिशा में भागेगा, और आप अल्टीमेटली कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, राइट।
तो उन्होंने कहा जब आपकी बुद्धि उन पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करके रखती है तो आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो कि किस तरफ जाना है। इसके बाद में उन्होंने इस चीज को समझाते हुए आगे ये भी बताया कि जो वो आईआईटी थे, तो उसमें वो क्लेम करती हैं कि आप तो आईआईटी थे। जो कन्वर्सेशन जिन दो जनों के बीच में हो रहा था, सुमित जी और एक 21 साल की लड़की थी, तो वो बताते हैं कि आप तो आईआईटी थे, तो आप तो मतलब क्या है कि आपने अपना को बहुत जल्दी से ये सब फोकस करवा लिया होगा, है ना। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्ट्रैक्शन हर एक की लाइफ में आता है, बट वही वाली बात है कि आप कितना अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस हो। जब ये ड्रीम्स की बात होती है तो वो वहां पे एक और क्लैश लेके वो लड़की उठाती है कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि भाई आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, जो आपके पास मिल रहा है ठीक है आप उससे उसको ले लो और संतुष्ट हो जाओ, और एक तरफ आप कह रहे हो कि आप ड्रीम को ही अपना गोल बना के उसके ऊपर टारगेट के ऊपर काम करो। तो ये दो अलग अलग बातें कैसे हो गई? एक तरफ करो कि आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, एक तरफ आप फल के ऊपर ही फोकस होने के लिए बोल रहे हो। तो वहां पे सुमित जी का बहुत अच्छा आंसर आता है कि एक्चुअली हम लोगों का ही समझाने का तरीका कुछ गलत हो गया शायद। हमने ये कभी ये नहीं कहा कि आप सिर्फ फल की इच्छा करके मतलब उसको जैसे तैसे जो आपका बन पड़े उसको वैसे ही हासिल करने की कोशिश करो। आपका तरीका सही होना चाहिए, और उसके लिए जो भी आपको मेहनत करनी पड़े, जो सही मेहनत है, सही राह पे चल के जो मेहनत करनी पड़े, आपको उसको उस तरीके से आपको फल को हासिल करना है। लेकिन फल के पीछे ही सिर्फ लगे रहना है और उसके आगे पीछे की हम सारी चीजों को बाइकआउट कर दें, उसको नजरअंदाज कर दें और गलत तरीके से हम उसको हासिल कर लें, चाहे भले उसमें किसी का भी नुकसान हो रहा हो, वो गलत है। तो मोरल ऑफ द थिंग वाज दैट कि आपका माइंड ही आपकी सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। आपकी 5 इंद्रियां आपके एक्शंस को मतलब आपके सामने चीजें लाती है, तो आपको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है और अपने ड्रीम के ऊपर फोकस होके आपको सही तरीके से सही माइंड की मैकेनिज्म के साथ में उसको फॉलो करके और अपने ड्रीम्स को हासिल करना है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। वाओ, ऑसम। बहुत बहुत शानदार बताया निशा जी आपने, बहुत शानदार। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था मैं दोबारा ही वो पॉडकास्ट सुन रही हूँ। बिल्कुल सारी चीजें जो है वो रिकॉल हो रही थी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और डेफिनेटली हमारा जो टेक अवे है वो ये जो हम बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि किस तरह से हम ड्रीम की बातें कर रहे हैं और किस तरह से हम ड्रीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उन चीजों को बहुत शानदार तरीके से सुमित जी ने समझाया है इस पॉडकास्ट में। कोई भी कुछ और भी शेयर करना चाहेगा इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, टेक अवे अपना जो है वो शेयर करना चाहेंगे, तो डेफिनेटली हम 3-4 लोगों से सुनना चाहेंगे कि टेक अवे क्या रहा इस पॉडकास्ट का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है कि किसने सुन लिया है ये पॉडकास्ट? सुबह सबसे पहले सुना था, इसको उठते सबसे पहला काम यही किया था। ग्रेट ग्रेट। जी हमने भी सुन लिया मुझे सीमा एक्चुअली एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे जो अच्छी लगी एक्चुअली हाँ सुमित जी। जी ने बोला था कि मतलब जो लड़की ने पूछा था कि आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, निशा जी ने काफी अच्छा बताया मतलब सब चीजों के बारे में। बट उसने बोला कि आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आजकल की जनरेशन को, आपको तो कुछ नहीं होगा इस तरह का, मतलब आप तो आपका फोकस क्लियर था। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, मेरी एज में भी डिस्ट्रैक्शन था, उस टाइम पे भी जैसे मैं पढ़ता था तो बच्चे मतलब बाहर जाते थे मूवीज वगैरह देखने और इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, लेकिन मैंने अपना फोकस मतलब उससे मतलब उन चीजों से हटाकर अपना फोकस क्लियर किया, अपना ड्रीम क्लियर किया, तो मैं ये चीज कर पाया। तो वो हर एज में होता है डिस्ट्रैक्शन, बस आपको अपना फोकस वो करना है। तो थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट शेयरिंग की। फोकस तो हर मतलब डिस्ट्रैक्शन तो हर कहीं पे होगा, है ना, पहले भी था अभी भी है, बस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो है वो चेंज होता है। तो आई थिंक एक चीज इसमें और, सॉरी आई एम हाँ जस्ट जी। इंटरप्टिंग, सॉरी। अभी जो संतोष जी ने बोला कि फोकस होना चाहिए और आपने बोला फोकस है, बस उस पे इन्होंने इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया है कि डेफिनेटली फोकस होना चाहिए आपके ड्रीम्स के ऊपर, बट द वे आप उस किस तरीके से उसको पाने के लिए क्या रास्ता चुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि गलत मीन से, जैसे उसमें उन्होंने प्लेयर के एग्जांपल दिया था कि रनिंग के अंदर हमेशा वो टॉप करते थे, फिर बाद में पता चला कि वो गलत तरीके से गोलियां लेके और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए अपने दवाइयां लेते थे और उसके बाद उनके सारे मेडल्स छीन लिए गए। तो ये जो रास्ता उन्होंने अपनाया था जीत हासिल करने के लिए, वो हमें बहुत ध्यान रखना है।
डिस्ट्रैक्शन सबके पास में है, और फोकस भी लोग ले आते हैं कि नहीं, एक बार जिद आ जाती है कि हमें एक पाना है, लेकिन उस जिद को फिर हासिल करने के लिए वो इतने ज्यादा आतुर हो जाते हैं कि कई बार हम गलत रास्ते पे चढ़ जाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। थैंक यू। बिल्कुल। और ये वाली चीज मैं विवेक भैया से हमेशा सीखती हूँ। भैया हमेशा यही बोलते हैं कि आप जहां पर हो उस चीज को एंजॉय करना मत भूलो। आप अपनी जर्नी जो आपका, ठीक है, हम बात करते हैं एफ कैम की, है ना, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर, डेफिनेटली सबका गोल वही है, डायमंड शिप सबका गोल वही है, लेकिन हम जिस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं उस जर्नी को एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी वो जर्नी जो है ना वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम सब जो है ये जो हमारी जर्नी है, जो हम सुबह का सेशन कर रहे हैं, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर की तरफ बढ़ने वाली जर्नी है, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, उस रास्ते को हम चुन पा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक 3-4 लोगों ने ही पॉडकास्ट सुना है, क्योंकि मैंने रेज हैंड सिर्फ नीता दी, सुप्रिया भाभी और रोहित भैया ने बोला, प्रियंका जी ने बोला, तो सिर्फ अभी इतने ही लोगों ने सुना है पॉडकास्ट। यहाँ पे मैंने भी सुना है, आशा बोल आशा रही जी ने हूँ। भी सुना है। मैंने भी सुना है, अभी इनफैक्ट सुन के ही अभी मैंने इसमें ज्वाइन किया है। हाँ, तो हम बिल्कुल फटाफट ना सबका एक बार टेक अवे लेना चाहेंगे, एक एक लाइन में, अगर फटाफट जो है वो हाँ, अपना टेक अवे। इन्होंने इस बार महाभारत का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया है, और कहते हैं कि हमेशा मैं इसमें से इसलिए कोट करता हूं क्योंकि 10th में उन्होंने ये सब्जेक्ट लिया था संस्कृत, तो उसमें उन्होंने जो भी पढ़ा था महाभारत के बारे में तो काफी उन्हें याद है, और बड़े बड़े लोग भी इसमें से कोट करते हैं, बिकॉज ये हमेशा ही आज के संदर्भ में हमें शिक्षा देता है, क्योंकि वो इतनी पुरानी, बेशक वो लिखा गया हो या बताया गया हो, मतलब सैकड़ों साल कह सकते हो आप, पर फिर उस पे भी हम आज इस पे बात इसलिए कर सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ की बात जो उन्होंने की है कि कैसे काम माइंड के साथ लोग काम करते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो कई लोग उसमें चाहे थोड़ा कम हो चाहे ज्यादा हो, इवन द डायमंड्स, लेकिन उनमें ये बात आपको मिलेगी जहां पर वो अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और इंटेलिजेंस के साथ काम कर सकते हैं, उनको इफेक्ट नहीं होता है, they don't get affected by either criticism, मतलब आपके खिलाफ अगर कोई वो कर रहा है, आपके खिलाफ बोल रहा है, तो भी ये नहीं करेंगे कि इसको तो कूटना चाहिए, मारना चाहिए, ऐसी फीलिंग नहीं आती उनके अंदर। वो हर चीज को, खुशी को भी और गम को भी, दोनों चीजों को एक समान लेते हैं, और वो फिर नेगेटिव नहीं होते और विचलित नहीं होते। तो ये चीज को लाना बहुत जरूरी है, जो कि यंग जनरेशन में आज के इसमें बहुत कमी है, बिकॉज हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं और परफॉर्मेंस एंजाइटी लेके आते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार गलत काम करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें स्थित प्रज्ञ होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस को कम करके अपने ड्रीम्स और अपने पर्पस को फॉलो करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे क्या मिलेगा या इसको पाने के लिए मैं क्या अलग अलग हथकंडे अपनाऊं। जैसे भी करो, कैसे भी करके ये चीज को नहीं हासिल करना है, इसका जो तरीका है उसके हिसाब से हमें जाना। ग्रेट शेयरिंग। और वन लाइन में जरूर से सुप्रिया भाभी से भी सुनना चाहेंगे, टेक अवे। टेक अवे मतलब होता है ना, पूरी पॉडकास्ट सुन के एक जो बात बिल्कुल ज्यादा क्लिक करती है, लगता है कि वो मेरे लिए ये, उसमें मेरे को अपने अंदर जो है वो चेंज करना है या अप्लाई करना है। तो वेलकम सुप्रिया भाभी। शायद अभी अवेलेबल नहीं है सुप्रिया भाभी, तो मैं प्रियंका जी को बुलाना चाहूंगी। वन लाइन टेक अवे। बस यही एक लाइन में है कि हमें अपना माइंड को स्थिर करना है, जो भी काम करना है सही और सही ढंग से करना है बस। ग्रेट। और अब मैं थोड़ा सा बुलाना चाहूंगी नीता दी को भी, अगर वो अवेलेबल है तो उनका टेक अवे और कंक्लूजन पॉडकास्ट गुड का। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो सुमित जी का कल पॉडकास्ट सुबह ही सुन लिया था आते ही। उसमें मुझे जो 2 बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी उनको शेयर करना चाहूँगी, और मतलब
मैं बताना चाहूंगी कि कई बार हम लोग कितने लीस्ट ऑब्जर्वेंट, जैसे मैं बहुत लीस्ट ऑब्जर्वेंट हूँ, जो उन्होंने बताया कि वो जो एक पिक्चर उन्होंने दिखाया था ना, जैसे जो 5 घोड़े, और वो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो 5 घोड़े हैं मतलब ना, और वो 5 घोड़े क्या डिपिक्ट करते हैं। माइट भी इतने सारे लोग जो बैठे हैं उनमें से कई लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा, बट मुझे कभी ध्यान ही नहीं रहा कि वो 5 घोड़े थे या उनको क्या डिपिक्ट करते हैं। तो कल उन्होंने बहुत अमेजिंगली उसको बताया, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग मेरी तरह होंगे जिनको नहीं पता होगा, है ना। और सेकंडली जो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि उस लड़की को जो ये बता रहे थे, जो 21 इयर्स ओल्ड जो बिज़नेस वो कर रही है, उनको बता रहे थे कि आपके पास ड्रीम्स की बकेट लिस्ट होनी चाहिए अपनी। अगर आपने अपनी ड्रीम्स की बकेट लिस्ट बना दी है, तो देन यू शुड नॉट फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम्स, बट देन यू शुड मूव इन अ वे कि हाँ, ठीक है, उन ड्रीम्स की पूर्ति की तरफ मैं चल रही हूँ, जो हम जादू के सेशन में भी एग्ज़ैक्टली बात करते हैं, है ना? और एंड एन्जॉय द प्रोसेस। और अगर आप प्रोसेस को एन्जॉय नहीं करोगे, तो जहाँ पर पहुँचोगे डेस्टिनेशन पे, वो भी जो है एन्जॉयबल नहीं रहेगी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और हमेशा हम यही बात करते हैं, अगर प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हैं, हर दिन अगर गोल से अटैच्ड हैं, हर दिन आप ज़िंदा हैं और हर दिन आप जो है मज़े कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे इज़ प्रोडक्टिव एंड एक्साइटिंग। थैंक यू सो मच। ग्रेट शेयरिंग। और अब हम आगे मूव करेंगे और उसमें बात करेंगे हम अपने बुक की। तो बुक के बारे में कौन शेयर करना चाहेगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो वही जो हमेशा तिलक सर पूछते हैं, किसने किसने बुक पढ़ी है? 3 हैंड रेज दिख रहे हैं, अगर मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ तो। 4 हैंड रेज हैं। तो अभी भी शायद हम सब लोग जो है वो 9 4 स्टेप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, है ना। और आप देख रहे होंगे कि अगर मतलब यही वाली चीज है, 9 4 स्टेप जो है वो कंप्लीट अगर आप करते हो, तो बिजनेस की गति जो है वो एकदम से जो है वो बूस्ट होती है। बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल वही है, तो हमें बिल्कुल उसमें जो है वो करना है ना। 5 पेज 10 पेज एटलीस्ट पढ़नी जरूर है। तो मैं रोहित भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा समराइज करें जो उन्होंने पढ़ा है। जरूर दीदी। सो देखिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल जब मैंने समराइज किया था तब ये बताया था कि जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो बनते हैं हमारे थॉट से, फीलिंग से, एक्शन से, और हमारे थॉट बनते हैं हमारी प्रोग्रामिंग से। और कल हमने बात की थी कि ये जो प्रोग्रामिंग होती है ये हमारी कैसे होती है। तो पहली चीज हमने कल डिस्कस करी थी वो है जो हम सुनते हैं उस चीजों से, ठीक है। शाब्दिक प्रोग्रामिंग बुक में हिंदी में इसमें यूज करा गया, और वर्बल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और उसकी हमने कल डिस्कशन किया था। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम बात करेंगे कि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है, दूसरा है मॉडलिंग, ठीक है। ये मॉडलिंग क्या होता है उसको समझते हैं कि मॉडलिंग का मतलब है कि हमने अपने घर में क्या देखा है, वो उस चीजों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कि जो हमारे माता पिता हैं उनका जो बर्ताव था पैसे को लेकर, वो पैसे को कैसे निवेश करते थे, पैसे को कैसे प्रबंधन करते थे, जो भी उनका जो था, वो चीजें हम हमारी अनकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है। और उन्होंने माता पिता के जो चाहे वो कुछ भी हो, जैसे उन्होंने लिखा है कि चाहे वो अच्छा प्रबंधन करते हो, चाहे वो फिजूल खर्ची करते हो, चाहे वो बहुत अच्छा निवेशक हो, वो सारी चीजें हम सीखते हैं, हम जानबूझ के नहीं, उनको देख देख के अपने आप ही सीख जाते हैं। तो उन्होंने कि इसका एक उदाहरण दिया, एक औरत की कहानी बताई। उस कहानी में वो बताती है कि एक औरत है डिनर में हैम पकाती थी। अब ये हैम क्या होता है मुझे नहीं पता, बट कि वो डिनर में हैम पकाती थी। उसका पति ने उससे पूछा कि आप ये हैम पकाते वक्त इसके सिरे दोनों साइड से उसको क्यों काट देते हो, उसको छोटा कर देते। तो पत्नी ने जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने अपनी माँ को देखा था, मेरी माँ भी जब हैम पकाती थी तो उसका वो सिरा काट देती थी। तो फिर वो उनकी माँ एक बार उनसे मिलने आई, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आप ये हैम पकाते वक्त इसके सिरे क्यों काटती थी? तो वैसे ही मैं करने लग गई। तो माँ ने बोला, मुझे भी नहीं पता, मैंने ओके हैम इज ए पिग, ओके हैम ही वर्ड ठीक है फिर तो। सो फिर बोला हैम को काटते वक्त मैं बोला मैं नानी, तो तेरी नानी को देखती थी, अपनी माँ को देखती थी, वो भी ऐसे सिरे काटती। बोला कमाल है, बोला मुझे भी नहीं पता। बोला मैं नानी से पूछता हूँ। उन्होंने नानी को फोन लगाया, तो नानी ने बताया वो हैम को सिर्फ इसलिए काटती थी कि नानी की कढ़ाई छोटी थी, उसमें पूरा आता नहीं था।
तो इसलिए वो उसको दोनों सिरे से काट देती थी और उस कढ़ाई में सो दैट कि वो फिट आ जाए। तो आपने देखा कि एक नानी सिर्फ अपनी कढ़ाई को एडजस्ट करने के लिए डालती थी, लेकिन उनके बच्चों को ऐसा लगा कि यही मतलब बनाने का तरीका ही है ना, इट्स अ रेसिपी, इसको ऐसे ही बनाना है। तो ये कंडीशन हो गया। तो इसी तरीके से हमारे जो दिमाग में पैसे को लेकर कंडीशनिंग होती है। लेखक ने ये भी उदाहरण दिया अपने पिता का, कि उनके पिता का एक बिजनेस था जहां पर वो जमीन खरीदते थे, उसमें मकान बना के बेचते थे। तो क्या होता था, जब आप मकान बनाते हो तो उसमें आपको निवेश करना पड़ता है, और आपके घर में फिर खर्चा जो पैसा है वो सारा का सारा निवेश हो जाता है। आपको हर छोटे मोटे काम के लिए फिर कंजूसी करनी पड़ती है, और जब आपकी जमीन बिक जाती है, वो मतलब प्लॉट बिक जाता है, तो आपके पास बहुत सारा पैसा आता है, फिर आप खूब उसको खर्च करते हो, मजे से जीते हो। ठीक है, अब यही कंडीशनिंग लेखक की होगी। तो जब उसने अपना बिजनेस शुरू करा तो वही उसके साथ हुआ, कि वो कमाता था और उसको रख नहीं पाता था, खो देता था। तो इस तरीके से और भी उदाहरण है, और भी उन्होंने अपने कुछ श्रोता हैं जो उनके सेमिनार के अंदर जो आते थे, और उन्होंने भी अपनी इस तरह की बातें बताई। बट आई थिंक ये 2 एग्जांपल एनफ है इस चीज को समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारी कंडीशनिंग हुई है अपने घर वालों को देखकर। ठीक है, तो जैसे उन्होंने शाब्दिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था, उसी तरह उन्होंने इसमें भी बताया कि इसको हम इसको दूर कैसे करें। ठीक है, तो दूर करने के लिए उन्होंने सिंपल से स्टेप्स बताए हैं, कि जैसे मैंने कल भी ये चीज बताई थी कि सबसे पहले आपको जागरूक होना जरूरी है, अवेयरनेस। ठीक है, अब अवेयरनेस कैसे होगी? आपको ये जागरूक बनना है कि धन और दौलत के मामले में आपके माता पिता की जो भी थिंकिंग रही है और जो उनकी एक्टिविटीज रही है, उससे आपको क्या इम्पैक्ट हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, उसका अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरी चीज हमने समझी थी, मतलब पहली चीज हो गई उनकी आपकी क्या प्रोग्रामिंग हुई है, और उस दूसरी चीज उसकी समझ कि उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। और फिर आपको ये स्वीकार करना है कि ये विचार जो है, ये प्रोग्रामिंग ये मेरी नहीं है, ये मैंने उत्पन्न नहीं की, मुझे तो ये मिली है, तो ये मेरी नहीं है, मैं इसको अपने आप से अलग कर सकता हूँ, डिसएसोसिएशन कर सकता हूँ। और फिर आप ये डिक्लेरेशन हमेशा, जैसे कल हमने सुना था कि डिक्लेरेशन की बात हुई थी, कि आप ये डिक्लेयर कर दें कि पैसे के क्षेत्र में मैं उसका अनुसरण कर रहा था, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा, और अपने सर को पकड़ करके कि मेरे पास एक मिलेनियर माइंडसेट है। तो इस तरीके से आप ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भी अभी तक हमने सीखा है अपने पेरेंट्स से और अपने गार्जियन से, वो उनके थे विचार, हमारे नहीं है, अब मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा, मेरे पास एक मिलेनियर माइंडसेट है। तो दिस इज हाउ आई कंक्लूड दिस कंडीशनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच रोहित भैया, बहुत अच्छे से आपने बताया। और बिल्कुल पढ़ने के बाद जब ये चीजें सुनते हैं तो रिकॉल होती हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाते हैं। शांति दी को और इनवाइट करूंगी कि 1-2 मिनट में अगर वो कुछ और भी ऐड ऑन करना चाह रही हैं इसमें। हेलो सभी को नमस्कार। ऐसे तो रोहित भैया जी ने सब बता दिया है, और इसमें यही है कि जैसे कि हम देखते हैं बंदर भी जैसे वैसे ही करता है जैसे और बंदर करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने यही मतलब एग्जांपल की दिया कि इंसान भी मतलब घर वालों में या आसपास में सब देख के मतलब सीखता है हर चीज, है ना। जैसे कहते हैं कि सेब अपने पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है, तो हमारे में भी वही दिमाग में मतलब शुरू से जैसे हम देखते आए हैं, हमारे पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते थे नहीं करते थे, या कोई मतलब भाई पैसे का क्राइसिस था, वो सारा दिमाग में, तो वो सब रोहित भैया जी ने बता दिया है। और हमको अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो उन्होंने जैसे कि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज की राइटर ने, और उन्होंने बिजनेस किया यही वाला फादर वाला, लेकिन धीरे धीरे वो भी पिता की तरह जैसे जब कमाते थे फिर वापस पैसा चला जाता। फिर उन्होंने प्रोग्रामिंग की कि नहीं ऐसा नहीं होता है, फिर उन्होंने जैसे जैसे प्रोग्राम की वो अमीर होते चले गए, उनके पास पैसा आने लगा और पैसा टिकने लगा। फिर भी उनके दिमाग में कभी कभी आता था कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे करूँ, पर वो अपने दिमाग को शांत कर देते थे कि नहीं मेरे को अपने हिसाब से चलना है। तो हमको अपनी प्रोग्रामिंग खुद ही सेट करनी है, न कि हमको पहले के विचार मतलब पेरेंट्स को देख के या किसी को देख के अपनी प्रोग्रामिंग को सेट करना है। खुद की प्रोग्रामिंग खुद ही करनी है कि हमें क्या करना है, तो यही बताया गया है। वैसे तो भैया ने सब बता दिया है। थैंक यू। आई थिंक 44 पेज तक कर लिया हमने, है ना? हाँ जी दीदी। तो कल हम 44 पेज से आगे का पढ़ेंगे। तीसरा प्रभाव विषय, तीसरा प्रभाव पूरा पढ़ लें क्योंकि हमें पास तो मंडे तक का ही टाइम है पूरा रिवाइज करने का। तो तीसरा प्रभाव कहाँ तक है? पेज नंबर 57। हाँ, तो हम 44 से 57 तक है वो कंप्लीट कल डिस्कस करेंगे।
ग्रेट। और अब फटाफट हमारे पास 1 ही मिनट का टाइम है, बिल्कुल किसी भी एक से मैं पूछना चाहूंगी, फोकस शेयरिंग कौन करना चाहेगा? आज की 2 बजे और 4 बजे की ट्रेनिंग है, और बाकी जो भी आपने प्लानिंग की है उसके बारे में कौन बताना चाहेगा? गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज का फोकस है कि क्योंकि वीकेंड है तो हमें इसको मोस्ट प्रोडक्टिव बनाना है, और आज कई सारे हमें 1-on-1 सेशंस हमने जो है प्लान कर रखे हैं, नॉट ऑन जूम, फिजिकल मीटिंग्स, क्योंकि अब हम कर पा रहे हैं तो हम लोग कुछ फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे और कुछ लोग जिनसे कि बहुत टाइम से जो फॉलो अप्स एंड फॉलो थ्रू जो है ड्यू थे, उनसे आज मिलने का जो है प्रोग्राम है। ग्रेट, थैंक यू सो मच नीता जी। और मुझे आज एक बुक लॉन्च में जाना है, तो वहां मैं कोशिश करूंगी कि कितने लोगों को मैं टच कर पाती हूँ। सो प्रोस्पेक्टिंग करूंगी वहां पर। पीटीएम करने वाले हैं आप डेफिनेटली। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिसका अभी फोकस नहीं बन पाया है, प्लानिंग नहीं बन पाई है, तो अभी वो मीटिंग के जस्ट बाद बैठें और अपना प्लानिंग करें, डे प्लान करें और उसके बाद एग्जीक्यूट करें। और अब प्रेयर की अपॉर्चुनिटी कौन लेने वाला है? कौन हमें आज प्रेयर करवाने वाला है? हमें सुनना नहीं, हमें बोलना भी है ना? तो कहीं पे भी अगर एक बार भी जो अभी तक इस सेशन में नहीं बोले, वो जरूर से प्रेयर करवाएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप इन्वॉल्व होते हो किसी चीज में। पैसिव इन्वॉल्व होते हो तो थोड़ा मजा आता है, लेकिन एक्टिव इन्वॉल्व होते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो कौन करवाना चाहेगा आज प्रेयर? मैं कोशिश करूं। वेलकम वेलकम प्रियंका जी। नीता दी कह रहे हैं कि वो स्क्रीन शेयर कर देंगे। हाँ जी, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। नीता दी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए और प्रियंका जी आप करवाइए प्रेयर। सबसे पहले हाथ जोड़े, सब जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शांत आत्मा हूँ। मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। शक्तिशाली परमात्मा हर वक्त मेरे साथ है। मेरा परिवार सुखी और समृद्ध परिवार है। मेरे बच्चे, मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मेरी एमवे की गाड़ी में जो भी बैठेंगे वो ऐश करेंगे। मेरी टीम दुनिया की सबसे यूनाइटेड, सबसे एक्साइटेड, सबसे शक्तिशाली टीम है। मेरी टीम में लोग अकाउंटेबल, टीचेबल, लगातार अपलाइन के कांटेक्ट में रहते हैं। आई एम ए डायमंड। मैं रोज सीडी सुनती हूँ। मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। गो डायमंड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑसम। ये बिल्कुल हम बात करते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की। प्रियंका जी बिल्कुल पिछले मंथ ही उन्होंने ज्वाइन किया है, अभी एडीआर टू एडीएस में कन्वर्जन हुआ है और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज को समझते हैं। तो डेफिनेटली बहुत शानदार तरीके से उन्होंने प्रेयर करवाई। थैंक यू सो मच। और अब टाइम आ चला है जबकि हम एक ही फ्रेम में सब डायमंड्स के पिक लेने वाले हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे तो फोटो कैप्चर करते हैं। स्टिल वेटिंग, कुछ वीडियोस और ऑन हो रहे हैं। रेडी, 1 2 एंड यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक गो डायमंड। मैं सबको ये कहना चाह रही हूँ कि कल ये हाँ जी सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं
तो आप में से अगर किसी को लग रहा है कि मेंटोर्स नहीं देख रहे हैं, आपके अपलाइन नहीं देख रहे हैं, तो रिकॉर्ड हो रहे हैं सारे सेशंस, है ना, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन सेशंस में, ऐसा नहीं होगा। मैं तो सिर्फ रोज इसलिए उठ जाती हूँ कि पीयूष आके मुझे बोलेगी कि यार तुम नहीं अटेंड कर रही थी, तो इसलिए मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है। तो आपके लिए भी वही सारी चीजें मना लागू होती हैं, तो जरूर से एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच। गो डायमंड। रेखा जी, आपने लिखा है कंप्लीटेड 50, Go तो Diamond। मुझे लगा कि शायद आपका जन्मदिन है। नहीं, वो मैंने पेजेस कंप्लीट करने की बात की थी, Okay. जन्मदिन की तो बात ही नहीं हुई आज। वैसे आज किसी का जन्मदिन है तो बता सकते हैं, हम सब विश करेंगे। अच्छा, 50 पेजेस कंप्लीट किए, ओके। हाँ, मतलब ये एक्चुअली मुझे लगा मैं पीछे चल रही हूँ, पर मैं थोड़ा सा आगे चल रही थी, तो इसलिए मुझे लगा ऐसे। 44 to 57 पेज है कल के लिए। हाँ जी, हाँ जी। Thank चलिए you. जी, बाय बाय चलिए, go एवरीवन, Diamond। गो डायमंड। गो Go डायमंड। Diamond.